Morning everyone. How are you students? I hope everybody is fine. You all must have seen the last video in which I have explained you some of the interesting questions of unitary method. Today I am again making the video of exercise 12A in which some different questions are there. So without wasting our time, let's start with the video. Carefully listen to the video and do all the questions which are given by your teacher. Okay, so let's start. Exercise 12A, which is on page number 109. Let's start with this exercise. The very first question is eggs cost rupees 36 per dozen. What does it mean? It means that 12 dozen. आपको मैं एक चीज़ अच्छे से समझाती हूँ. आपको क्वेश्चन में लिखा है eggs cost rupees 36 per dozen. How much will 18 eggs cost? आपको बच्चा कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो आप कॉस्ट को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लिखोगे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. तो आपको क्या गिवन है? पर डजन. 1 डजन का मतलब होता है 1 डजन इज इक्वल्स टू 12. दैट मीन्स आपको यहाँ क्या गिवन है? 12 eggs कॉस्ट्स इज इक्वल्स टू रुपीज 36. आपको क्या फाइंड आउट करना है? 18 eggs का कॉस्ट. तो आपको 18 eggs का कॉस्ट फाइंड आउट करना है. आई टोल्ड यू समथिंग. यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं? Before finding out the value of 18 eggs, we have to first find out the value of 1 egg. यानी हमें पहले 1 egg का cost find out करना है. Which will be, आपको ज़्यादा का value पता है, आपको 1 का find out करना है. You have to divide it with the numbers. 36 को 12 से divide करोगे, what you will get? 12 3s are 36, तो rupees 3. That means 1 egg cost rupees 3. Now you have to find out the cost of 18 eggs. What it will be? It will be 3 multiplied by 18. अगर आपको lesser value is given to you, you have to find out the value of greater one, so you have to multiply the numbers. 18 3s are 54. So what will be your solution? Rupees 54 will be your solution. Is it clear? Now next question, question number 2, I have already explained in the Zoom meeting, so I am explaining to you question number 3 here. So let's see what is the question. 5 liters of petrol cost rupees 250. What is the cost of 20 liters? आपको 20 liters का cost find out करना है. अब आप क्या करोगे? देखो 5 liters का cost given है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 liter of petrol costs is equals to rupees 250. तो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको पहले 1 लीटर्स का फाइंड आउट करना है, यानी यूनिट का फाइंड आउट करना होता है. तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, यू हैव टू डिवाइड द नंबर्स. तो 250 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट यू विल गेट? रुपीज़ 5 5s are 25 एंड 0. आप उसको रफ में डिवाइड करके देखो और चेक करो कि हाँ 50 इज देयर और नॉट. अब आपको फाइंड कितने का करना है? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 लीटर्स? आपको 20 लीटर्स का फाइंड आउट करना है. तो यू विल राइट हियर 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट्स इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 20. सो व्हाट विल बी द आंसर यू विल गेट? 5 2s are 10 होता है. Along with it 2 zeros are there in the question, so you will put it. So rupees 1000 is your solution. Is it clear? Now let's do question number 4. Sandra uses 4 meter of lace to make 2 dresses. 2 dresses को बनाने के लिए वो 4 meter of lace का यूज़ करती है of the same size and design. डिज़ाइन भी सेम है और साइज भी सेम है. How much lace will she need to make 12 such dresses? ऐसी ही 12 ड्रेसेस अगर उसको बनानी है तो कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी? तो येस, वी विल डू दिस क्वेश्चन हेयर. हम लोग इसको लिखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है चीज़ें. क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में? दैट आपको फाइंड आउट क्या करना है? लेस फाइंड आउट करनी है. तो आप लिखोगे 2 ड्रेसेस को प्रिपेयर करने के लिए हाउ मच लेस शी नीडेड? शी नीडेड 4 मीटर्स ऑफ लेस. तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लेस फॉर 1 ड्रेस. 1 ड्रेस के लिए आपको कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप डिवाइड करेंगे 4 को 2 से and you will get 2 meters as your answer. Now you have to find out the lace for 12 such dresses. तो 12 ड्रेसेस के लिए कितना लेस की ज़रूरत पड़ेगी? आप इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ पे एरोज नहीं बनाएंगे. सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 12.
सो हाउ मच यू विल गेट 24 मीटर्स। तो आपको कितना आंसर मिला 24 मीटर्स। शी नीडेड 24 मीटर्स ऑफ लेस विल शी नीड फॉर 12 such dresses. Is it clear? Now question number 6 I am going to do. Question number 5 आपको खुद करना है. Try to solve. बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं आपको समझा देती हूँ. Mrs. Khema uses 600 milliliter of ice cream to make milkshake for 4 people. 4 लोगों के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए she needs 600 milliliters of ice cream. आपको पूछा गया है how much ice cream will she need to make milkshake for 10 people. 10 लोगों के लिए अगर मिल्क शेक बनाना है तो कितना आइसक्रीम will she need. तो पहले आप 1 people के लिए फाइंड आउट करोगे और फिर उसके बाद 10 peoples के लिए फाइंड आउट करना. यू विल गेट योर आंसर, आई एम श्योर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 cakes of soap of the same size weighs 210 grams. अगर 3 cakes of soap जो है उनका वेट 210 ग्राम्स है तो हाउ मच डू 20 such cakes of soap weigh. आपको क्या गिवन है, आपको वेट निकालना है. तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 cakes of soap weighs कितना 210 grams. तो आप पहले क्या करोगे 1 cake of soap को फाइंड आउट करोगे. 1 cake of soap weighs is equals to 210 divided by 3 which equals to 3 7s are 21 and 0 70 grams. आपको कितने केक्स ऑफ सोप का फाइंड आउट करना है 20. तो 20 केक्स ऑफ सोप वे is equals to 70 multiplied by 20. What it will be? 7 2s are 14 and 2 0. तो 1400 grams. Or you can say that this is 1 kilogram 400 grams. अब ये मैम ने कैसे लिखा, देखो आप जानते हो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं. तो आप इसको लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम इज इक्वल्स टू इन 1 ग्राम्स. 1000 को हम इधर लेके चले गए. तो 1400 ग्राम्स का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप 1400 यानी 1400 को 1000 से डिवाइड करो, आपको किलोग्राम्स फाइंड आउट हो जाएंगे. जब आप उसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 1 kg 400 ग्राम्स. आप उसको डिवाइड करोगे ना यू विल गेट द आंसर. ये हमने क्लास 3 में भी बच्चे सॉल्व किया है. देखो 1000 1 जा 1000 माइनस किया 400. सो दिस विल बी योर kilograms and this will be your grams. This we have already done. Fine? Okay. Now next is question number 7. 6 bags of the same weight, same size का 6 bags हैं जिनका weight है 120 to 120 kgs. तो how much will 9 such bags weigh? You have to find it out. 6 bags का given है, 1 का निकालो and then find it out of 9. You will get your answer. I know that. This is your homework. I am doing 8th question for all of you. So question number 8 में the question is a gym charges its members rupees 1500 for a quarter. Quarter का मतलब होता है 3 months. 1 year में 12 months होते हैं. 12 month का 1 quarter निकालोगे तो quarter का मतलब होता है 1/4. तो 12 months का आप 1/4 करते हो तो आपको 3 months मिलते हैं. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इसलिए आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट डज इट चार्ज फॉर अ ईयर. 1 ईयर के लिए वो कितना चार्ज करेंगे. तो क्या गिवन है आपको गिवन है चार्जेस फॉर 3 months इज इक्वल्स टू ₹1500. तो आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे चार्जेस फॉर 1 month. 1 month का कितना चार्ज होगा 1500 को डिवाइड करोगे विथ 3. कितना मिला आपको 3 5s are 15 and 2 zeros along with it. Charges for 1 month is equals to ₹500. Is it clear? लेकिन आपको तो चार्जेस फाइंड आउट करना है 1 ईयर के लिए. तो चार्जेस फॉर 1 ईयर. 1 ईयर मीन्स 12 months. 1 ईयर में 12 months होते हैं. आप फाइंड आउट करो, क्या करोगे 500 यानी 1 month के चार्ज को 12 से मल्टीप्लाई करोगे. 12 5s are 60 along with it 2 zeros are there. So you will get your answer ₹6000. So charges for 1 year will be ₹6000. Now the next question is question number 9. A factory makes 3500 bicycles in 7 days. एक फैक्ट्री 3500 बाइसिकल 7 days में बनाती है.
तो हाउ मेनी बाइसिकल्स विल इट मेक इन 30 days इफ़ थिंग्स इन द फैक्ट्री कैरी ऑन द सेम वे। 7 days में इतने बाइसिकल्स बना रही है, तो 1 days का फाइंड आउट करो वाइल डिवाइडिंग 3500 विद 7 and then multiply the answer with 30. You will get your answer. I hope everything is clear to every one of you. Any doubt still you all have, you can ask me. Okay, so nothing is there, you all can do it. So take care everybody, good luck, and just do the questions.